Good morning, everyone. Welcome to the another session of Information and Technology. Today, we are here to discuss the next few topics in the same chapter, that is ICT skills. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन. Today we will talk about operating system in detail. What is operating system, the different components that makes this entire structure, which is very worthy for any computer or any digital device. Like we have defined for a number of times that an operating system is basically acting as an interface between user and hardware. We are user, you people are user, any people who is working in a bank is a user, and an employee who is working in a railway ticket counter is acting as a user. Any individual who is in front of a computer, who is in front of a digital device or a gadget, a smartphone, he or she is a user. Now that user is interacting with the hardware, like maybe a laptop, maybe a desktop, maybe a smartphone, maybe a tablet. But that hardware is not only a set of device. That hardware is not only some sort of tangible thing. That hardware is giving that user a platform to work on it. That hardware also giving the opportunity to do all sort of work that he or she is supposed to do. So how that hardware is making it possible? That hardware is making it possible only with the help of operating system, because operating system allow us to use the resources of hardware. Operating system allow us to use the different benefits or features of hardware. An operating system allow us to start a hardware, to run a hardware. So operating system is basically an interface between user and hardware. Through this diagram, you can understand the end user. We people are the end user, the hardware, the device that we buy or purchase from the market. And in between, there are two things. The first thing, हार्डवेयर में सबसे पहले क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. क्यों जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले आना? अदरवाइज हार्डवेयर को हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन को जान नहीं पाएंगे, हार्डवेयर के मैक्सिमम पोटेंशियल को नहीं जान पाएंगे, और उस हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपने स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं. अगर एमएस ऑफिस में काम करना है तो एफएस ऑफिस एक इंस्टॉल एप्लीकेशन है, फोटोशॉप में काम करना है तो फोटोशॉप एक एप्लीकेशन है, अगर कोई वीडियो मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है तो वो एक एप्लीकेशन है. सो वेरी फर्स्ट थिंग, द बेसिक यूनिट इज हार्डवेयर, उसके ऊपर में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा तब आएगा एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को कौन एक्सेस करेंगे? यूजर. ठीक है. So this is how it goes. Then we have a kind of circular shape diagram over here, in which again there is a description of different layers of an operating system, कि किस तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है. अगर आप इस डायग्राम के देखेंगे तो सबसे आउटर लेयर पे है, सबसे आउटर पोर्शन पे है यूजर, और सबसे सेंट्रलाइज पोर्शन यानी इनर पोर्शन पे है हार्डवेयर. ठीक प्रीवियस डायग्राम जैसा ही वर्ड्स या टर्म्स को यूज किया गया है, बस एक टर्म एड ऑन किया गया है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, दैट इज कर्नल. व्हेन वी टॉक अबाउट कर्नल, कर्नल इज बेसिकली द बेसिक कोर ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. कहने का मतलब है कि हार्डवेयर के ठीक ऊपर एक लेयर रहता है, एक इंटरफेस रहता है, एक फर्मवेयर है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग कर्नल के नाम से जानते हैं. दैट इज आल्सो नोन एज बेसिक कोर यूनिट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कर्नल का काम क्या है? कर्नल का काम एक प्लेटफॉर्म देना, एक 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 ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो पाए. That kernel makes it possible, makes it ensure that okay, if this is a Windows operating system, this is a Linux operating system, this is a Macintosh operating system, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर में कंपैटिबल हो पाए, इस चीज को इंश्योर करने का काम कर्नल करता है. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एप्लीकेशन यानी जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं आप वो करते हैं, और यूजर उसको एक्सेस करता है. इन डिटेल अगर आप देखेंगे तो कर्नल के बारे में लिखा हुआ है, द कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ ओएस. ठीक है. दिस बेसिक यूनिट, द स्ट्रक्चरड यूनिट, द मेन मेजर यूनिट
दैट डज ऑल मेजर एक्टिविटी। कर्नल सारा मेजर एक्टिविटी ही करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या? मेमोरी एलोकेशन। हम लोगों ने सीपीयू में 3 यूनिट देखा था, सीयू, एएलयू, एमयू। तो मेमोरी यूनिट का काम क्या है? मेमोरी यूनिट एलोकेशन करना। कोई भी डेटा प्रोसेस हो रहा है तो डेटा के इनिशियल लेवल से लेकर लास्ट लेवल, प्रोसेसिंग के इनिशियल लेवल से लेकर लास्ट लेवल, यानी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना है कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, ये काम मेमोरी यूनिट करता है। लेकिन वो किसके डायरेक्शन पे करता है? कर्नल के डायरेक्शन पे। तो कर्नल डज ऑल द मेजर एक्टिविटी लाइक memory allocation, then scheduling, ठीक है। G time is basically the processing time, how it is going to just execute any work. Scheduling is basically कि अगर मेरे पास मल्टीपल काम है, एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं यूजर के एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यूजर्स के रिक्वेस्ट के बेसिस पे उनको प्रायोरिटाइज करना है। लाइक इफ द रिक्वेस्ट हैज कम to print something, after that there is a request to display something in the screen, first work has to be done, that is printing. So then it will be responsible to display the thing what has been requested. So that scheduling is basically to prioritize the request of the user. कर्नल और किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द बूटिंग ऑफ ए कैचिंग मेमोरी, सॉरी बूटिंग ऑफ द सिस्टम, an initialization. Booting is basically the starting time of an operating system. Whenever we press the power button of a CPU, we find that initially in the screen there is a black screen in this LED or LCD, और black screen पे कुछ देर के लिए कुछ मैसेज पॉपअप्स होते हैं, और कुछ प्रोग्रेस बार बढ़ने के बाद आपका विंडोज का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज हो या अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो आपका होम स्क्रीन आपको उसका दिखता है। तो उस पीरियड को, जितनी देर तक आपका सिस्टम नॉर्मलाइज होता है, जितनी देर तक आपका सिस्टम स्टेबल होता है कि नहीं, अगर आप यूज कर सकते हैं, अपना होम स्क्रीन पे आ गए हैं, पासवर्ड वगैरह डालिए और यूज कीजिए, तो उस पीरियड को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग इज बेसिकली टू makes the system stable from the very beginning to a situation, ठीक है, where things are coming into your screen. तो booting में वो सारी चीजों को चेक करता है। Okay, each and every device is connected to the computer. My memory is working properly. इस पूरे booting process के दौरान एक process होता है that is called post, power on self test. What is post? Power on self test की full form से आपको समझ में आ रहा होगा। Like when we are pressing the power button, the CPU make ensure that all the hardware device which is connected to the CPU are in activated mode. They are getting power supply and they become active. They come to know, okay, my boss has instructed me to just get into the activated mode. You have taken enough rest. तो ये पावर बटन दबाने के दौरान जो प्रोसेस होता है उसको बूटिंग कहते हैं। उसमें एक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल एग्जीक्यूट करती है, दैट इज पोस्ट। पोस्ट का काम है सारे डिवाइस के फंक्शन होने का इंश्योर करना कि ओके ऑल डिवाइस आर गेटिंग पावर सप्लाई, दे आर जस्ट गेटिंग इनफ स्पेस व्हाटएवर दे नीड टू गेट टू वर्क प्रॉपर्ली। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग एक इंटरफेस की तरह मानते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम कर्नल की बात करें तो ये एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, और जो सबसे बॉटम लेयर पे है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आप सीपीयू या लैपटॉप या कोई भी चीज खरीद रहे हैं। तो आपके हार्डवेयर पे वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन आप उसको तभी इंस्टॉल कर पा रहे हैं जब कर्नल एक स्पेस, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर टेक्निकली देखा जाए डिटेल तरीके से, तो kernel is the thing, a kernel is the unit, a kernel is the basic core which provide the platform to any application to get it installed in a computer. ठीक है, मतलब सीपीयू मैनेज करने का काम, मेमोरी मैनेज करने का काम, डिवाइस में स्पेस लेने का काम, सारा कुछ कर्नल देखता है। कब? जब किसी एप्लीकेशन को हम लोग किसी सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। तो कर्नल इज द बेसिक कोर विच डील्स विथ मोर और लेस एवरीथिंग कि ओके, you need to install this software, I will give you the space, I will give you the memory to install it, get it installed, I will instruct the CPU to do the work as users are requesting. So kernel is a kind of middleman which is actually working
for all sort of application that is getting installed. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कर्नल, दैट डील्स विद द वेरियस थिंग्स. आई सजेस्ट यू राइट डाउन 2 or 3 पॉइंट्स अबाउट कर्नल. कर्नल का डेफिनेशन एक लिख लीजिए और उसके 2 फीचर्स लिख लीजिए कि वो क्या क्या करता है. दैट विल बी मोर देन इनफ. देखिए लास्ट पॉइंट जो पैराग्राफ है, कर्नल प्रोवाइड सर्विसेज द इंटरसेप्ट द हार्डवेयर रिक्वेस्ट. ठीक है, हार्डवेयर रिक्वेस्ट जो मतलब अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो यानी हम लोग हार्डवेयर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हार्डवेयर को परमिशन मांग रहे हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर को आप अपने हार्डवेयर में यानी आप अपने सीपीयू में अपने रैम में स्पेस दीजिए, उसको इंस्टॉल होने दीजिए. तो उसको इंस्टॉल होने के लिए जो परमिशन या रिक्वेस्ट मांगा जाता है हार्डवेयर, वो कर्नल प्रोवाइड करता है. ठीक है, KRNL, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इसको इतना स्पेस रैम चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी चाहिए, इसको इतना प्रोसेसिंग कैपेसिटी चाहिए, मेरे पास है ये सॉफ्टवेयर आपके मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपैटिबल है, इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, लेट यू कैन इंस्टॉल योर सॉफ्टवेयर. अगर वो कंपैटिबल नहीं है, किसी तरह का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन का इश्यू है या रैम उसके हिसाब से नहीं है अवेलेबल, तब वो ऑटोमेटिकली एक एरर मैसेज दे देगा. तो ये सारा चीज चेक करने का काम कर्नल करता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम itself. ठीक है, कर्नल इज काइंड ऑफ द चाइल्डाइजिंग पार्टनर बिटवीन द सिस्टम इंस्टॉलेशन, सॉरी एनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन. ओके, देन डिवाइस ड्राइवर. देखिए डिवाइस ड्राइवर is something that is more very important earlier, but nowadays this is not very much required in case we are getting the operating system like Windows 10 or any version more than that. Why? देखिए डिवाइस ड्राइवर है क्या, इसका इंपॉर्टेंस आज से 4 से 5 6 साल के पहले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका हुआ करता था, जब हमारे पास विंडोज 7 नहीं आया था. विंडोज 7 विंडोज 8 तक भी इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत था. क्यों? जैसे कि मान लीजिए आप एक सिस्टम ले रहे हैं, उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, अगर आपको उसमें कुछ वीडियोस वगैरह ऑडियोज वगैरह सुनना है तो आपको ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, यानी ऑडियो प्ले करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था. आपको ग्राफिक्स में सारा कुछ ब्लर दिख रहा है या बहुत बड़े बड़े जूम इन फॉर्म में दिख रहा है, उसको स्टेबलाइज करना है, ग्राफिक्स को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको ग्राफिक का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था. आपको इंटरनेट यूज करना है यूएसबी टेथरिंग के थ्रू या किसी भी तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू, लाइक नोकिया पीसीसी यूटेना एवरीथिंग, तो नेटवर्क यूज करने के लिए उसका अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट to use any additional hardware in a computer we need to install the driver of that particular device. मतलब उस सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करने के लिए, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, प्रिंटर हो, जॉयस्टिक हो, किसी भी तरह का, या कोई एक यूएसबी डोंगल हो, उनको इंस्टॉल करने समय उनको यूज करने के लिए उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है. अभी के टाइम पे ये चीज काफी नॉर्मलाइज हो चुकी है. व्हाई? बिकॉज देयर आर मेनी ड्राइवर व्हिच इज इनबिल्ट और बाय डिफॉल्ट अवेलेबल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. आज के टाइम पे आपको ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वीडियो ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. In case your operating system is an older version or your device is not that compatible or it is an older version of your device, उसी टाइम पे आपको डिवाइस का ड्राइवर यानी उस डिवाइस के लिए जो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है. इवन if you use any USB pen drive in your laptop or desktop or any USB dongle, you will find for the timing for a time थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट से 1.5 मिनट या 30 सेकंड के लिए, वो लिखता है the device is trying to installing the driver or software, your device is ready to use. वो पॉपअप मैसेज आपके टेक्स्ट टास्क बार में दिखता है. वो कर क्या रहा है, वो डिवाइस जिसको आपने अपनी डिवाइस में लैपटॉप में इंसर्ट किया है, वो अपने कंपैटिबल ड्राइवर को आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि वो डिवाइस ड्राइवर अलाउ करेगा, ये इंश्योर करेगा कि आप उस डिवाइस को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज वो सपोर्ट नहीं करेगा तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे. देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड पीएनपी. पीएनपी स्टैंड्स फॉर प्लग एंड प्ले. ठीक है, तो प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे काफी ज्यादा यूज हो रहा है. मतलब आपको डिवाइस ड्राइवर बहुत अलग से इंस्टॉल करने की, अवेलेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती है.
जैसे कि कोई पेन ड्राइव जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। इवन आप कोई वायरलेस माउस यूज़ करना चाहते हैं तो उसका जो छोटा सा स्टिक आता है पेन ड्राइव यूएसबी ड्राइव की तरह, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, सॉरी इंसर्ट कर लीजिए अपनी यूएसबी ड्राइव में, आपका इमीडिएटली वो इंस्टॉल कर लेगा। आपको मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के लिए आपको वायरलेस रिमोट यूज़ करना है, माउस यूज़ करना है, आप उसके लिए छोटा सा पेन ड्राइव टाइप का स्टिक आता है, उसको प्लग इन कर लीजिए। तो ये सारे डिवाइस जो है, इनको यूज़ करने के लिए आज के टाइम पे आपको अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द मोमेंट यू इंसर्ट, दे टेक फ्यू सेकेंड्स टू गेट इट कंपैटिबल विद द डिवाइस एंड दे स्टार्ट्स वर्किंग। वो इमीडिएटली वर्क करना शुरू कर देते हैं और आपका जो भी पर्पस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो plug and play is basically a term which is used to install the driver immediately, automatically, ठीक है, the moment you are inserting it in the respective drive or respective location of the device। जैसे कि आपका कोई भी पेन ड्राइव हो या फिर किसी तरह का कोई दूसरा डिवाइस जिसको आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। प्लग एंड प्ले इज a term which makes it possible, makes it ensure okay, the connected device is ready to use, you don't have to install any extra software for that। आप उसको बाहर निकाल लीजिए उस पर्टिकुलर डिवाइस को अपने डिवाइस यूएसबी ड्राइवर से, तो मैं वो काम करना बंद करेगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम आप कनेक्ट करेंगे इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट द डिवाइस ड्राइवर। अब इसके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसमें, और वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द डे चिल्ड्रन। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, और जो भी डिस्कस किया, अगर किसी तरह का कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द ग्रुप, ठीक है। जो भी आपका होमवर्क है वो आपको गूगल क्लासरूम एज वेल एज इन ग्रुप में मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम एंड स्टे सेफ।